Namaste everyone. So today's topic is trigonometric functions of multiple and sub-multiple angles. Right? So students, first of all, we should know about what are multiple angles and what are sub-multiple angles. So let us try to understand what are multiple angles and what are sub-multiple angles. Multiple angles. Multiple angles. So first of all, we will talk about multiple angles. So students, angles like 2a, 3a, 4a, 5a and so on, these type of angles are known as multiple angles of A. These are called multiple angles of A. So students, angles of type 2a, 3a, 4a, 5a and so on, these are called multiple angles of A, right? Now we come to sub-multiple angles. So what is the meaning of sub-multiple angles? Sub-multiple angles. Angles like a by 2, a by 3 and so on, these are called sub-multiple angles of A. Right students? So angles of type a by 2, a by 3, these type of angles are called sub-multiple angles of A. And angles of type 2a, 3a, 4a, 5a and so on, these are called multiple angles of A. Right students? तो मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, सब मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं, आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बट आवर टूडेज टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. तो यहाँ हमें क्लियर हो चुका है कि व्हाट आर मल्टीपल एंगल, दैट इज एंगल्स लाइक 2a, 3a, 4a, 5a, दीज आर कॉल्ड मल्टीपल एंगल्स ऑफ ए, राइट. एंड एंगल्स ऑफ टाइप a by 2, a by 3 and so on, these are called सब मल्टीपल एंगल्स ऑफ A. Right students? Now टॉपिक इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स. तो आज हम क्या स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझ लें. आज हमारे पास जो एंगल्स हैं हमारे जो होंगे मल्टीपल एंगल्स, सब मल्टीपल एंगल्स होंगे. किस टाइप के टर्म्स के साथ आज हम डील करेंगे, लाइक साइन 2a, कॉस 2a, टेंजेंट 2a, कुछ भी हो सकता है. साइन 2a, आई एम टेकिंग सम एग्जाम्पल्स, कॉस 3a, राइट, टेंजेंट 2a. तो ये कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं. इस टाइप की टर्म्स के साथ आज हम काम करेंगे. साइन 2a, कॉस 3a, टेंजेंट 2a एंड सो ऑन. तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस these 2a, 3a, 2a, all these are multiple angles. These are multiple angles, right? These are multiple angles, and these sine, cos, tangent, these are trigonometric functions. These are trigonometric functions. Sine, cos, tangent, these are trigonometric functions, right? So these are trigonometric functions. तो students, आज हम बात करेंगे साइन 2a, cos 3a, टेंजेंट 2a, इस टाइप की कुछ टर्म्स की बात करेंगे. एंड इन दिस टर्म दिस 2a, 3a, टेंजेंट 2a, these are multiple angles, and sine, cos, tangent, these are trigonometric functions. So we can say this is whole trigonometric functions of multiple angles, right? So this whole sine 2a, cos 3a, tangent 2a and so on, these terms are called trigonometric functions of multiple angles. तो आज हम कुछ इस टाइप की टर्म्स की बात करेंगे, right? That's why name of our today's topic is trigonometric functions of multiple and sub multiple. तो यहाँ पे अगर मैं sub multiple की बात करूँ, so we will talk about later, that is about sin a by 2, cos a by 3, tangent a by 2. तो यहाँ पे जो एंगल है वो सब मल्टीपल एंगल हो जाएगा. देन वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ इसकी बात करूँ तो वी विल टॉक अबाउट लाइक दिस टर्म्स, डेट इज टेंजेंट a by 2, cos a by 3, right, sin a by 2. So in all these terms, these are some multiple angles and these are trigonometric functions. So these are trigonometric functions of some multiple angles. These are trigonometric functions of multiple angles.
राइट स्टूडेंट्स, तो इस टाइप की टर्म्स की आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी था कि इस टॉपिक का यहाँ पे जो हेडिंग है दैट इज मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, सबसे पहले पॉइंट हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उसी के बाद हम अपने क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। एंड इट्स वेरी लेंथी टॉपिक, थोड़ा लेंथी टॉपिक है और 3-4 पार्ट्स में आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, 3-4 वीडियोज़ में आपका टॉपिक कंप्लीट होगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चन इजली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमें सब मल्टीपल एंगल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और आज हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और मल्टीपल एंगल्स की आज हम बात करेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा जो उस पर जो फोकस है वो रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, सो टुडे विल टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। तो आज जो हमारा फोकस वो रहेगा वो मल्टीपल एंगल्स पे हम पहले बात करेंगे। तो मल्टीपल एंगल्स का हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर बेस हम काफ़ी क्वेश्चंस कर लेंगे एंड देन वी विल कम टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स, राइट। तो आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स की बात करेंगे आज, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, right students. So there are some formulas which are available in case of trigonometric functions of multiple angles. तो कुछ फॉर्मूलाज की मैं यहाँ पे बात करूँगी और उन फॉर्मूलाज के बिना हम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो कुछ फॉर्मूलेज आप नोट कर लीजिए, वन बाय वन मैं आपको बताती जाऊँगी। सो अवर फर्स्ट वन इज नंबर 1 sin 2a, sin 2a, ठीक है। यू कैन सी दिस इज 2a, 2a इज अ मल्टीपल एंगल, साइन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल एंगल एंड sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, 2 sin a cos a। स्टूडेंट्स वैसे तो इनके जो प्रूफ्स हैं वो आपके जो CBSE का जो आपका सिलेबस है दैट उस सिलेबस में आपके जो प्रूफ्स हैं वो इंक्लूड नहीं है, आपको जस्ट इनके रिजल्ट्स ही लर्न करने हैं। लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कुछ फॉर्मूलाज के, मैं आपको यहाँ पे प्रूफ बता दूँगी कि फॉर्मूलेज कैसे डिराइव हो रहे हैं, कैसे उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नंबर 1 sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a। तो स्टूडेंट sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a कैसे आया अभी आपको क्लियर हो जाएगा। वी कैन राइट sin 2a एज sin a प्लस a, राइट, वी कैन राइट इट एज sin a प्लस a एंड आई विल टेक इट एज a प्लस b, a प्लस b। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे sin a प्लस b का, जो कि ऑलरेडी हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में पढ़ चुके हैं। तो sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, राइट। तो sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। तो ये फॉर्मूला हम इस यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, sin a प्लस a पे हम अप्लाई कर देते हैं, राइट। और वी कैन से कि यहाँ पे हम b के प्लेस पे या तो a पुट कर देते हैं, एक ही बात है, पुट b इज इक्वल टू a। तो b के प्लेस पे अगर आप a पुट कर देते हैं यहाँ पे तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगी sin a प्लस a, दैट इज sin 2a, राइट हैंड साइड sin a cos a प्लस cos a sin a, और ये आपका रिजल्ट आ गया दैट इज sin a cos a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, राइट स्टूडेंट्स। सो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a कैसे आया ये भी आपको क्लियर हो चुका है और आपको याद रखना है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, राइट स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट, ये आपके पास sin 2a का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, दिस इज 2 sin a cos a, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके पास फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, राइट। अभी मैं आपको sin 2a का ही एक और फॉर्मूला बता रही हूँ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, टेन के टर्म्स में इसका फॉर्मूला क्या होता है, राइट डाउन 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, राइट। अब ये फॉर्मूला कैसे आपका डिराइव हुआ ये समझते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आपका सेम रहेगा, sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos a, सबको क्लियर हो गया कि sin 2a 2 sin a cos a कैसे आया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा, यस। सो sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, हमें क्लियर हो गया है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं बाय 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है एंड वी कैन राइट 1 एज ए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, राइट। तो 1 को मैंने लिख लिया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, राइट। नाउ डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दीजिए।
तो आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट, जब मैं इसको कॉस के रे से न्यूमरेटर को डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा 2 sin a अपॉन कॉस ए, क्योंकि जब कॉस के रे से डिवाइड करूंगी तो एक कॉस से कैंसिल हो जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर है, ये tan स्क्वायर a बन जाएगा। एंड कॉस स्क्वायर a बाय कॉस स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, और ये आपके पास आ गया 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट स्टूडेंट्स। और आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, दैट इज 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट। तो ये आपका sin 2a का tan के टर्म्स में फॉर्मूला है, और ये आपका sin 2a का sin और cos के टर्म्स में फॉर्मूला है। तो sin 2a के 2 फॉर्मूलेज आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a, एंड द सेकेंड वन इज sin 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एंड इट इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, एंड द फर्स्ट वन इज इन टर्म्स ऑफ sin एंड cos। तो अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन में जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली हम इन फॉर्मूलोज को यूज़ करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फॉर्मूला था, डेट इज sin 2a। नेक्स्ट कम टू cos 2a। सो नेक्स्ट है cos 2a। लेट अस सी सेकंड क्या है हमारे पास, cos 2a। हाँ जी, cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। देखते हैं कैसे आएगा cos 2a। cos 2a को भी हम लिख सकते हैं, डेट इज cos a प्लस a, राइट। और यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेंगे a प्लस b, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे cos a प्लस b का। यस, व्हाट इज फॉर्मूला, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। और सेम यहाँ पे हम स्टेप लगा सकते हैं, पुट b इज इक्वल टू a, एट द प्लेस ऑफ b a पुट कर देते हैं, तो a प्लस a 2a, and it will be cos a minus sin a, and it will be cos square a minus sin square a, right students। तो cos 2a is equal to cos square a minus sin square a, ठीक है। तो cos 2a आपका आ गया है cos square a minus sin square a, right। तो ये आपका cos 2a का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin। अब इसी तरीके से अगर मैं cos square a को, वी कैन राइट cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। वी कैन राइट cos स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये आपका बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, राइट। cos स्क्वायर a को पहले मैंने क्या लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इट विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपको समझ में आ गया होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो ये आपके पास cos 2a का भी फॉर्मूला बन गया, लेकिन ये किसके टर्म्स में बन गया आपके पास, सिर्फ साइन की टर्म्स में। तो cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ साइन एंड इट इज़ इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं साइन स्क्वायर a को लिख लूँ, यस, अगर हम साइन स्क्वायर a को लिख लें 1 माइनस cos स्क्वायर a, राइट। साइन स्क्वायर a को क्या लिख लिया, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इट विल बी माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर, इट विल बी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आपका cos 2a का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ cos ओनली। कैसे आया, साइन स्क्वायर a को हमने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, राइट। तो इसको सिर्फ कॉस में कन्वर्ट करने के लिए हमने साइन स्क्वायर a को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा, और सिर्फ साइन में कन्वर्ट करने के लिए कॉस स्क्वायर a को लिखा था 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो आपके पास एक और फॉर्मूला कन्वर्ट होकर आ गया, डेट इज 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको क्लियर हो गया होगा स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स आप लिख लीजिएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, तो ये आपका आ गया cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos, राइट स्टूडेंट्स। तो ये cos 2a का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन, डेट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दिस इज इन टर्म्स ऑफ साइन ओनली, डेट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, एंड दिस इज इन टर्म्स ऑफ cos ओनली, डेट इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। नाउ as in case of sin 2a there is a formula in terms of tangent, similarly in case of cos 2a there is a formula available that is in terms of tangent। तो ऐसे ही cos sin sin cos की टर्म्स में वापस फॉर्मूले आ चुके हैं। अभी हम एक फॉर्मूला टेंजेंट की टर्म्स में भी लिखेंगे, तो वो भी लिख लेते हैं। cos 2a का tan की टर्म्स में क्या होता है फॉर्मूला, लेट अस सी। यस, हाँ जी। तो cos 2a का tan की टर्म्स में वापस फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। यस, दिस फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। तो लेट अस सी कि ये फॉर्मूला कैसे आएगा इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। यस, cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूले को देखिए,
cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, राइट। इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे क्या होगा 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, राइट। नाउ डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, वही सेम स्टेप लगेगा, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। सो आफ्टर डिवाइडिंग वी विल गेट cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो ये आपके पास आ गया cos 2a का इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट a, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी हमारे पास जो टोटल है वो 2 फॉर्मूलेज अवेलेबल हैं। द फर्स्ट वन इज फॉर्मूला ऑफ साइन 2a जिसमें हमारे पास फर्दर 2 अवेलेबल है, एंड देन सेकंड इज cos 2a का फॉर्मूला जिसमें हमारे पास फर्दर 4 अवेलेबल है। तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन 2a, 2 sin a cos a इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट a, 2 टेंजेंट a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये कैसे आया ये आपको क्लियर हो चुका है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं। द सेकेंड वन इज cos 2a दैट इज cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इट इज़ इन टर्म्स ऑफ cos एंड साइन। अगर सिर्फ साइन के टर्म्स में है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, अगर सिर्फ इन टर्म्स ऑफ cos याद करना है तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और टेंजेंट के टर्म में होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, राइट स्टूडेंट्स। तो अभी जो हमने बात की यहाँ पे साइन 2a की भी बात हो गई, cos 2a की भी बात हो गई, अभी हम बात करेंगे टेंजेंट 2a की, टेंजेंट 2a। तो टेंजेंट 2a का भी हमारे पास एक यहाँ पे फॉर्मूला अवेलेबल है, लेट अस सी कि वो फॉर्मूला क्या है। यस, सो टेंजेंट 2a, यस, तो टेंजेंट 2a is equal to 2 tangent a upon 1 minus tan square a. There is only one formula of tangent 2a, that is in terms of tangent a. सिर्फ टेंजेंट a के टर्म्स में एक ही फॉर्मूला है टेंजेंट 2a का, दैट इज 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो लेट अस सी ये कैसे आया, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू 2 टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सो स्टूडेंट्स वी कैन राइट टेंजेंट 2a एज टेंजेंट a प्लस a, राइट। तो एक a को हम b मान लेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सेम टेंजेंट a प्लस बी का। सो टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b अपॉन 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, राइट स्टूडेंट्स। तो पुट b इज इक्वल टू a, b के प्लेस पे a सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट b इज इक्वल टू a, पुट करने के बाद वी विल गेट टेंजेंट 2a इज इक्वल टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a upon 1 minus tangent a into tangent a, that is 2 tangent a upon 1 minus tan square a। तो इट्स वेरी सिंपल, और आपके पास tangent 2a का भी फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो स्टूडेंट्स अभी जो भी हमने फॉर्मूले यहाँ पे अभी नोट किए, या जो भी हमने फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, राइट, तो यहाँ पे हमने किस एंगल का, किस मल्टीपल एंगल का भी हमने यहाँ पे यूज़ किया है, 2a। साइन 2a हमने लर्न की, साइन 2a के फॉर्मूलेज हमने देखे, cos 2a के देखे, टेंजेंट 2a के देखे, राइट। सो अभी जो ऑल ओवर जो जितने भी हमने फॉर्मूलेज यहाँ पे अभी डिराइव किए हैं, और जितने भी अभी हमने यहाँ पे स्टडी किए हैं, एक्चुअली जो हमारा अभी ओवरऑल जो ये फॉर्मूले हैं किस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a, राइट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ड है अभी हमारे तीनों के तीनों फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a। अभी सिर्फ हमने 2 एंगल की यहाँ पे बात करी है। तो स्टूडेंट्स अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, ठीक है। 1 बाय 1 हम अपने फॉर्मूलेज लिखते चले जाएंगे, आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो मैं धीरे धीरे आपको फॉर्मूलेज लिखवाऊंगी और अकॉर्डिंगली मैं आपको क्वेश्चंस कराती चली जाऊँगी। तो आज सिर्फ हम इन तीनों फॉर्मूलोज पे फोकस करेंगे और इनके ऊपर बेस्ड हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a, राइट। सो फर्स्ट हमारे साइन 2a के हैं, जो कि 2 फॉर्मूले अवेलेबल हैं, cos 2a में हमारे पास टोटल 4 और टेंजेंट 2a में हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। तो अभी टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7। तो इन 7 के ऊपर बेस्ड अभी हम अपने क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट अवर क्वेश्चंस। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2x, राइट। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2x व्हेन इट इज गिवन when sin x is equal to 9 by 10, it is given sin x is equal to 9 by 10, cos x is equal to minus 3 by 5, and and it is given, yes, cot x is equal to minus 12 by 5, cot x is equal to minus 12 by 5.
तो स्टूडेंट्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ cos 2x. हमें cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इट इज गिवन वैल्यू ऑफ sin x, cos x, cot x. चलिए देखते हैं. cos 2x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. cos 2x इन फॉर्मूलास पे आ जाइए. तो सबसे पहला जो हमें गिवन है, हमें किसकी वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन एक्चुअली में करने हैं एक ही क्वेश्चन में. हमें cos 2x की वैल्यू sin x की हेल्प से फाइंड आउट करनी है, cos 2x की वैल्यू cos x की हेल्प से, और cos 2x की ही वैल्यू cot x की हेल्प से फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले cos 2x की वैल्यू sin x की हेल्प से फाइंड आउट करने के लिए हम cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. यस, क्योंकि हमें sin x की वैल्यू गिवन है तो हम सिर्फ वही फॉर्मूला प्रेफर यहाँ पे करेंगे जिसमें सिर्फ साइन हो. तो वी विल यूज सेकेंड फॉर्मूला ऑफ cos 2a, दैट इज cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे cos 2x आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि इट इज़ गिवन साइन एक्स. साइन एक्स आपको गिवन है तो आप साइन एक्स का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो जो आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला चूज़ करेंगे और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे. सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इट विल बी 81 by 100 and it will be 100 minus 162 by 100, that is minus 62 by 100, that is minus 31 by 50. Yes, so it is our required result, that is minus 31 by 50, right? तो cos 2x की वैल्यू हमने sin x की हेल्प से फाइंड आउट करी by using formula in terms of sin x, right? Similarly we will find value of cos 2x. ऐसे अब हम cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, लेकिन अब हमें क्या अवेलेबल है, cos x. क्योंकि cos x अवेलेबल है तो हम सिर्फ वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें सिर्फ cos की टर्म हो, राइट? तो आपको क्लियर हो चुका है. सेकेंड पार्ट करने के लिए नाउ आई विल यूज cos 2x को हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. सो पुट वैल्यू ऑफ cos x, सो इट विल बी 9 by 25 minus 1, that is 18 by 25 minus 1, that is it will be minus 7 by 25. Right students, so its value will be minus 7 by 25. Now the third one is, तो cos 2x की वैल्यू हमने cos x की हेल्प से भी फाइंड आउट कर ली यहाँ पे, राइट स्टूडेंट्स. नाउ cot x की हेल्प से हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन cos 2x का cot x की टर्म में तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, लेकिन tan की टर्म में है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें cot x की वैल्यू गिवन है माइनस 12 by 5, तो tan x की क्या हो जाएगी यहाँ पे, tan x की हो जाएगी माइनस 5 by 12, राइट? तो tan x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी माइनस 5 by 12. तो फ्रॉम हेयर इफ cot x इज माइनस 5 by 12, तो tan x विल बी माइनस 5 by 12, राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी cos 2x का tan की टर्म्स में. तो इट विल बी 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एंड आई विल substitute value, that is 1 minus 25 by 144 upon 1 plus 25 by 144, that is 144 minus 25, 144 से 144 cancel हो जाएगा, and it will be 119 by 169, right students? 119 by 169. Is it clear? चलिए, तो इट्स वेरी सिंपल. इस क्वेश्चन में हमें cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें sin x गिवन है, हमें cos x गिवन है, हमें cot x गिवन है. तो सबसे पहले हमने sin x की हेल्प से फाइंड आउट किया बाय यूजिंग फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ sin ओनली. देन cos x की हेल्प से विथ बाय यूजिंग फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos ओनली. एंड देन cot x गिवन था तो cot को पहले हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज माइनस 5 by 12. 10 की टर्म्स में फॉर्मूला यूज़ किया, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 2x है तो वी कैन राइट हियर x, right? 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. So 1 minus 25 by 144 plus 1 plus 25 by 144, and after solving we will get 119 by 169, right students? तो फॉर्मूले आप अगर आपको अच्छे से लर्न रहेंगे तो आप अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चंस आपके इजी हो जाएंगे. सो लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज गिवन फाइंड वैल्यू ऑफ sin 2x, फाइंड वैल्यू of sin 2x when it is given sin x plus cos x is equal to 1. when it is given sin x plus cos x is equal to 1. थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में आपको sin x plus cos x का जो सम है वो 1 गिवन है, एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है sin 2x की. sin 2x की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक हल्का सा आइडिया लगा लेते हैं कि sin 2x होगा किसके इक्वल. यस, sin 2x फर्स्ट फॉर्मूले पे आ जाइए. sin 2a 2 sin a cos a,
तो 2x हो जाएगा टू sin x cos x, 2 sin x cos x. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin x cos x. चलिए, बट कुछ गिवन नहीं है. जैसे लास्ट क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन थी तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूला आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया था. तो यहाँ पे आप कौन सी ट्रिक अप्लाई करें कि 2 sin x cos x बन जाए. यस स्टूडेंट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दीजिए. तो वी विल गेट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. फिक्स टाइप का क्वेश्चन है ये. प्लस 2 sin x cos x and 1 square 1 and sin square x plus cos square x 1 and 2 sin x cos x sin 2x and 1 से 1 cancel and this implies sin 2x is equal to 0. right student? तो इट्स वेरी सिंपल. सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आइडिया लेना है यहाँ पे कि sin 2x मतलब वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 2 sin x cos x. तो अकॉर्डिंगली हमारे माइंड में आएगा कि अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायरिंग करने के बाद 2 sin x cos x टर्म आएगी और वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी sin 2x की. राइट, चलिए. Now let us come to our next question. So our next question is, yes, find value of sin 2x cos 2x tangent 2x when it is given tangent x is equal to, yes, it is given tangent x is equal to 24/7. right, and x lies in third quadrant. x lies in third quadrant. अगर x थर्ड में लाई करता है तो थर्ड में आपको पता ही है कि टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव. डेट्स वाई यहाँ पे टेंजेंट x की जो भी वैल्यू गिवन है वो पॉजिटिव गिवन है. तो इसका मतलब यही है x lies in third quadrant, डेट्स वाई वैल्यू ऑफ टेंजेंट x इज हेयर पॉजिटिव. राइट, चलिए. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें sin 2x cos 2x टेंजेंट 2x फाइंड आउट करना है. बट हमारे पास जो अवेलेबल है वैल्यू वो सिर्फ किसकी है, टेंजेंट x की, ओनली टेंजेंट x. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास sin 2x cos 2x और टेंजेंट 2x तीनों के ही tan के टर्म्स में फॉर्मूले भी अवेलेबल हैं. sin 2x का भी tan के टर्म्स में अवेलेबल है, cos का भी और टेंजेंट का भी. तो तीनों फॉर्मूले यहाँ पे हम लिख लेते हैं. सबसे पहले sin 2x, यस, किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. राइट, cos 2x इज इक्वल टू, यस, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x. एंड थर्ड टेंजेंट 2x, हाँ जी, अप्लाई हो जाएगा 2 टेंजेंट x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x. तो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल. कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में. तीनों फॉर्मूले आपने यूज़ कर लिए. तीनों आपने tan के टर्म्स में क्यों लिखे, क्योंकि आपके पास टेंजेंट x की वैल्यू अवेलेबल है, डेट्स वाई. तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको टेंजेंट x की वैल्यू गिवन है स्टूडेंट. तो ये वैल्यूज़ आप sin 2x के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपके पास sin 2x की वैल्यू आ जाएगी. इट्स वेरी सिंपल. आप ये कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इसको. ऐसे यहाँ पे आप टेंजेंट x की वैल्यू 24/7 पुट कर दीजिए, ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपके पास आ जाएंगे आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स. दैट इज वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x एंड टेंजेंट 2x. सो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, तो जहाँ पे जो वैल्यू अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास जो फॉर्मूलेज हैं कि आपको साइन के टर्म्स में यूज़ करना है, कॉस के टर्म्स में यूज़ करना है, टेंजेंट के टर्म्स में यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्मूले चूज़ करेंगे और अप्लाई करके अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. चलिए, नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, it is given if cos x is equal to 1 by 2 a plus 1 by a, then show that cos 2x is equal to 1 by 2 a square plus 1 by a square. right students? तो वैल्यू आपको cos x की गिवन है और आपको जो शो करना है वो किसकी वैल्यू शो करनी है, cos 2x की शो करनी है और वैल्यू cos x की गिवन है, cos x. तो इट मीन्स आप cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे जिसमें सिर्फ cos x हो, डेट इज़ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. तो वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चन फ्रॉम cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1. यहाँ से शुरू करेंगे. ये फॉर्मूला हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमें cos x की वैल्यू गिवन है. अगर sin x से गिवन होती तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते. राइट स्टूडेंट्स, नाउ वेरी सिंपल, पुट वैल्यू ऑफ cos x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए. जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 एंड a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1 बाई ए माइनस 1 एंड वी विल गेट 1 बाई 2 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि ए से कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पहले 1/2 को इस पूरी होल टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, डेट इज़ 1/2 ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर
और फिर 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, +1 -1 1 से 1 कैंसिल, और ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ 1/2 इंटू a² प्लस 1/a²। तो स्टूडेंट वेरी सिंपल, cos 2x को आपने प्रूव करना था, cos 6 की वैल्यू आपको गिवन थी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने सिर्फ वो फॉर्मूला यूज़ किया जिसमें सिर्फ कोसाइन टर्म थी, अकॉर्डिंगली आपने cos 6 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व कर दिया, एंड वेरी सिंपली आपका रिजल्ट आ गया, दैट इज़ रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज़ 1/2 इंटू a² प्लस 1/a²। नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट, हाँ जी, इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को देखें, cos 2a इज इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर a, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a, राइट। और ऐसे ही इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a। तो स्टूडेंट्स इन दोनों रिजल्ट्स को आप ऐसे भी याद रखिए, क्योंकि इस फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ये यूज़ होते हैं। दैट इज़ 1 - cos 2a इज इक्वल टू, एक्चुअली भी बना ये यहीं से ही है, यहीं से आपके पास आ रहा है फॉर्मूला, दैट इज़ 1 - cos 2a इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर a एंड 1 + cos 2a इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a, राइट स्टूडेंट्स। तो इन दोनों का भी यूज़ होने वाला है इस क्वेश्चन में, दैट इज़ वी हैव टू प्रूव 1 - cos 2x अपॉन 1 + cos 2x, एंड हमें प्रूव करना है कि इक्वल है tan स्क्वायर x के इक्वल। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, वेरी सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने हैं आपने। सो 1 - cos 2x, दैट इज़ 1 - cos 2a, बस यहाँ a है वहाँ x है, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। सिमिलरली 1 + cos 2x 2 cos स्क्वायर x, 2 से 2 कैंसिल, और आपके पास आ गया tan स्क्वायर x योर राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, बस आपने याद रखना है कि इन्हीं फॉर्म, देखिए इसी एक फॉर्मूले से आपके पास कितने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे बन गए हैं। cos 2a से आपके पास साइन के टर्म्स में बना, cos के टर्म्स में बना, इन दोनों से फर्दर आपके पास ये 2 बन गए, और इसी से फर्दर tan के टर्म्स में बन गया आपके पास, ठीक है। तो सारी फॉर्म्स आप अच्छे से याद रखिए, कब कौन सी फॉर्म की आपके पास जिस फॉर्म की जहाँ पे ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंगली आप यूज़ करेंगे। चलिए नाउ लेट अस कम टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 + sin 2x 1 + sin 2x अपॉन 1 - sin 2x इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 + x, राइट स्टूडेंट्स। और वी कैन से टेंजेंट 45 + x होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो tan स्क्वायर 45 + x को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 45 + x होल स्क्वायर, राइट। चलिए नाउ कैसे होगा ये क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे, 1 + sin 2x 1 + sin 2x। तो सबसे पहले sin 2x का तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो sin 2x को तो मैंने लिख दिया 2 sin x cos x, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी sin 2x को लिख लिया 2 sin x cos x, राइट। अभी हमारे पास क्या है, 1 है ऊपर, दोनों तरफ 1 है, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, तो मैं 1 को लिख सकती हूँ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ऐसे नीचे भी मैंने लिख दिया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, राइट स्टूडेंट्स। तो आपके पास न्यूमिनेटर में बन गया है cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आपके पास बन गया है cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले 1 के प्लेस पे लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, एंड एट द प्लेस ऑफ sin 2x 2 sin x cos x, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही। तो न्यूमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला बन गया cos x प्लस sin x होल स्क्वायर, एंड डिनोमिनेटर में cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। अब चूँकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो हम ओवरऑल एक स्क्वायर यहाँ पे कर सकते हैं, दैट इज cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x होल स्क्वायर, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब हमें इसको प्रूव किसके इक्वल करना है, एक्चुअली हमें जिसके इक्वल प्रूव करना होता है वहाँ से हमें आइडिया होता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या अप्लाई करना है। तो टेंजेंट 45 + x होल स्क्वायर, एंड वी नो टेंजेंट 45 + x आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, दैट इज 1 + tan x अपॉन 1 माइनस tan x, इसका स्क्वायर चाहिए आपको, मतलब आपको चाहिए 1 + tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट इट्स वेरी सिंपल, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि लास्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। आपको यहाँ पहुँचना है, अगर आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो इट मीन्स आप पहुँच जाएंगे टेंजेंट 45 + x के होल स्क्वायर पर, राइट। आपको राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अंदर की तरफ डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। अगर आप अंदर की तरफ cos x से डिवाइड कर दें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को, आप देख सकते हैं ये बन जाएगा 1 + टेंजेंट x,
और नीचे आपके पास बन जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स। यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, cos x से डिवाइड कर दीजिए, तो वी विल गेट 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x होल स्क्वायर, दैट इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दैट इज टेंजेंट 45 प्लस x होल स्क्वायर। राइट स्टूडेंट, तो इट्स वेरी सिंपल, राइट। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज़ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। तो उसमें आज हमने अभी जो फोकस किया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स पे किया है, और मल्टीपल एंगल्स में भी फर्दर सिर्फ हमने अभी जो हमारा फोकस है आज जो हमारा रहा दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 2a की आज हमने बात करी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल 3a की भी बात करेंगे, और अभी इस टॉपिक के ऊपर बेस भी कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अच्छे से स्टडी कीजिए, और जितना आज मैंने आपको कराया उसके ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टिल नेक्स्ट लेक्चर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैप्पी लर्निंग।